Hello students, welcome back to our online class with Best English School and with me your English teacher Havisha Patel students. So students, we are now in the second semester, right? So we would like to start our second semester part of English subject students. So our chapter 7, we would like to start our chapter 7, and that would be included in your second semester examination students. We all know the crisis of which we are facing right now about the coronavirus, and due to that virus we are studying here with the help of this technology, our phone. In my hands I have my own phone, and in your hands you are having your phone. So with the help of this new technology we should have to study. So without wasting any time, let's start our chapter 7 of English subject fair play students. Okay, so let's begin. Part 1. Jumman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. सो स्टूडेंट्स, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और उनका बॉन्ड फ्रेंडशिप का इतना स्ट्रॉन्ग था कि बाई चांस उनके विलेज में से कोई भी फैमिली कहीं बाहर गई होती है तो दूसरा उसके फैमिली की देखभाल करते हैं और ख्याल रखते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स को, और वो लोग विलेज में बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन्स थे. Jumman had an old aunt who had some property. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. The arrangement worked well for a couple of years. Then the situation changed. Jumman and his family were tired of the old relative. Jumman became an indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. She swallowed these insults along with her food for a few months, but patience has its limits. So students, what happened that जुम्मन जो था उनकी एक ओल्ड आंट थी और उसके पास एक प्रॉपर्टी थी. तो उसने यही बोला, उसने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम करनी थी. एक अंडरस्टैंडिंग रखी थी कि वो उनके साथ रहेगी, जुम्मन की आंटी जुम्मन के साथ रहेंगी और वो प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगी. फिर देन बहुत टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद ऐसा सिचुएशन पूरा का पूरा चेंज हुआ, जिसमें जुम्मन और उसकी जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा थक गई थी वो ओल्ड रिलेटिव से, मतलब उनकी ओल्ड आंट से. तो जुम्मन की वाइफ बहुत डिफरेंट, बहुत ग्रजेस, उनका गुस्सा उसके ऊपर निकालती थी. एक टाइम का जो खाना का था उसकी आंट को खाना देने का, वो उसे नहीं देती थी, और जब भी देती थी तो वो उसे बहुत सुनाती थी एंड वो खाने के लिए भी तरस जाते थे. ऐसे भी टाइम आ गए थे वो ओल्ड आंट, जुम्मन की ओल्ड आंट के लिए. बट तब भी उनकी जितने भी पेशेंस हम लोग के पास, जितने भी शांतिपूर्वक वो रहती थी, बट एक टाइम ऐसा आया कि उसका पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट तक वो पेशेंस रह सकती है, शांत रह सकती है, बट एक लिमिट के बाद सब कोई ना कोई गुस्सा हो ही जाता है. One day she speak to Jumman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. My wife knows best how to run the house. Be patient," said Jumman shamelessly. This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village panchayat. So students, one day the lady aunt spoke to Jumman. So she spoke to Jumman and she said, "My son, I know that there is no need for me in your house." मतलब तुम्हारे घर में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम मुझे मंथली पैसे दे दिया करना, तो मैं एक अलग सेपरेट किचन कर लूँगी. तो जुम्मन ने बोला कि मेरी वाइफ को पता है कि घर किस तरह से चलाया जाता है, आप शांति से रहो
और जुम्मन ने ये चीज़ बहुत शेमलेसली बोली, बहुत ख़राब तरीके से बोली। तो उन्होंने उसकी आंट को पता चल गया और वो आंट बहुत गुस्से हो गई और उन्होंने डिसाइड किया कि वो विलेज पंचायत जाएगी, अपना केस लेकर वो विलेज पंचायत जाएगी। पहले ज़माने में एक ऐसा था स्टूडेंट्स की जो विलेज में रहते थे वो लोग के पास एक श्योरिटी थी, पंचायत में जाके उन्हें न्याय मिलेगा, राइट, जस्टिस मिलेगा। तो वो तब जुम्मन की आंट पंचायत में गई। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. At last, she came to Algu Chaudhary and spoke to him. You know, Chachi, Jumman is my best friend. How can I go against him? Algu said. But is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair? Pleaded the old lady. Come to the panchayat and speak the truth, she said. Algu didn't reply, but her words kept ringing in his ears. सो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या हुआ, बहुत दिनों तक जो ओल्ड लेडी थी वो हर जगह लोगों से, मतलब विलेजेस के जो लोग थे उनसे बातें करती थी और अपने केस के बारे में एक्सप्लेन करती थी और उनको बोलती थी कि आप उन्हें सपोर्ट करें, मतलब वो उन्हें सपोर्ट करें। कोई लोग बहुत सिंपैथाइज्ड होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा दया करते थे उनके ऊपर और सहानुभूति देते थे कि हाँ हम आपके साथ हैं। कोई लोग बहुत ज़्यादा हंसते थे और कोई लोग तो ऐसा एडवाइस करते थे कि तुम अपनी नेफ्यू मतलब जुम्मन के साथ और उसकी वाइफ के साथ सुलह कर लो। एंड लास्टली जो ओल्ड लेडी थी वो अलगू चौधरी के पास गई बात करने के लिए। तो अलगू चौधरी ने उन्हें बोला कि चाची, जुम्मन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे ये बात कैसे बोल सकता हूँ। तो उसकी ओल्ड लेडी ने बोला कि तुम्हें ये चीज़ देखनी चाहिए कि क्या सच है और क्या झूठ है, तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज़ इट इज़ राइट, ये सही है बेटा और तुम्हें बोलनी चाहिए। कल तुम आओ पंचायत में और सच का सच बोलना, झूठ नहीं, सच बोलना पंचायत के सामने। और फिर वो चली गई। तो जब वो चली गई तब तक और जब तक ये चीज़ें चल रही थी तब तक अलगू के दिमाग में और कान में उनकी बातें गूंज रही थी। चलता है ना, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है। तो वैसे ही ओल्ड लेडी की बातें अलगू चौधरी के ईयर्स में घूमती ही जा रही थी, चलती ही जा रही थी उनके वर्ड्स की, तुम्हें पंचायत में आना है और तुम्हें सच बोलना है। So students, our part 1 is complete. Now we will go part 2. The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. Jumman stood up and said, "The voice of the panch is the voice of God. Let my aunt nominate the head panch. I will abide by her decision." तो स्टूडेंट क्या हुआ, पंचायत बैठी उसी टाइम इवनिंग के टाइम में एक ओल्ड बैनियन ट्री के नीचे। तो जुम्मन ने बोला कि जो पंचायत डिसाइड करेगी, जो वॉइस है पंच का, वो वॉइस भगवान के हिसाब से, मतलब वही भगवान है, भगवान जो बोलेंगे वही होगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहले मेरी आंट बोले एंड उसके बाद फिर वो जो डिसीजन लेंगी फिर उसके बाद वो मैं बोलूँगा। Then the punch knows neither friend nor enemy. What do you say to Algu Chaudhary? The old lady announced. Fine, replied Jumman, hiding his joy over this unexpected piece of luck. Chachi, you are aware of my friendship with Jumman, said Algu. I know that, replied the aunt, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. God lives in the heart of the punch, and his voice is the voice of God. And the old lady explained her case. Jumman said, Algu, you and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you. Now I am a punch. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense?
सो स्टूडेंट्स, द पंच नोज कि कोई भी फ्रेंड नहीं है, कोई भी एनिमी नहीं है। तो व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी? तो उन्होंने बोला अलगू चौधरी मेरे रिलेटेड क्या बोलेगी। ओल्ड लेडी ने अनाउंस किया अलगू चौधरी को। तो अलगू चौधरी, जुम्मन ने बोला, मतलब जुम्मन को खुशी हुई एक तरफ से, क्योंकि अलगू चौधरी तो उसका फ्रेंड है, राइट स्टूडेंट्स। तो जुम्मन को ऐसा लगा कि उसके फेवर में ही ये बात आएगी, और उसे लगा कि क्या किस्मत है मेरी कि ओल्ड लेडी ने अलगू चौधरी को पंच माना। फिर उन्होंने बोला जुम्मन ने बोला कि आपको, अलगू ने बोला कि चाची आपको तो पता है ना कि मेरी फ्रेंडशिप और जुम्मन की फ्रेंडशिप एकदम पक्की वाली फ्रेंडशिप है, राइट। तो आंट ने बोला कि हाँ मुझे पता है, बट मुझे ये भी पता है कि तुम फ्रेंडशिप के सेक में, मतलब फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप के वजह से तुम सच और गलत का भेदभाव करो, मतलब झूठ नहीं बोलोगे, आप ऐसा बोल सकते हो, वो झूठ नहीं बोलोगे, इसलिए मैंने तुम्हें पंच के थ्रू चूज़ किया है, क्योंकि जो पंच बोलेगा वो ऐसा ही माना जाता है कि गॉड बोलता है। उसके बाद ओल्ड लेडी ने पूरा का पूरा केस एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ, जुम्मन ने उनके साथ क्या किया, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर अलगू ने बोला, जुम्मन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं ओल्ड फ्रेंड्स है, बट अब तुम्हारी आंट ने मुझे पंच माना है, तो तुम और तुम्हारी आंट दोनों मेरे सामने इक्वल है। तो व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हारे थ्रू तुम्हें अपने डिफेंस में क्या बोलना है, अलगू ने जुम्मन को बोला। तो जुम्मन ने बोला, 3 years ago my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance for me. This is not possible. That's all I have to say. सो जुम्मन ने क्या बोला कि 3 साल पहले मेरी आंट ने उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो मेरे नाम कर दी, और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं उनका देखभाल करूँगा, और मैंने बहुत ज़्यादातर देखभाल की भी। बट कभी कुछ टाइम में मेरी वाइफ और इनके बीच में झगड़े होते थे, मतलब बहस होते थे। क्वेरल मतलब बहस होना, और उस चीज़ में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बट अब वो ये क्लेम करती है कि उन्हें मंथली अवेलेंस, मतलब मंथली पैसा चाहिए, और वो सेपरेट किचन कर लेंगी, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इतना ही मुझे ये चीज़ बोलना है, जुम्मन ने अलगू चौधरी के सामने बोला। देन जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किया गया, जैसे हम लोग कोर्ट में नहीं देखते वकील एक दूसरे के क्लाइंट के सामने क्रॉस एग्जामिन करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। फिर अलगू ने अनाउंस्ड किया, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली। इन माई ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज aunt a monthly allowance or else the property goes back to her। तो क्या हुआ, अलगू ने बोला कि मुझे ये मैटर बहुत अच्छे से पता चल गया है, और मेरे ओपिनियन, मतलब अलगू चौधरी के ओपिनियन में जुम्मन को ज़रूर अपनी आंटी को मंथली पैसा देना ही चाहिए। इफ़ वो नहीं देगा तो उसकी प्रॉपर्टी, जो आंट की प्रॉपर्टी थी, वो ले सकती है, वो आंट की प्रॉपर्टी खुद आंट ले सकती है, जो अलू चौधरी ने ये बात बोली। Now the two friends were seldom seen together. The bond of friendship between them was broken. In fact, Jumman was Algu's enemy and wanted his revenge. So students, what happened? Obviously, अलगू चौधरी ने सच का साथ दिया और जुम्मन के अगेंस्ट में ये बात बोली, तो जुम्मन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो क्या हुआ उसके बाद, जो दोनों की फ्रेंडशिप थी, जो बॉन्ड था, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था फ्रेंडशिप का, वो टूट गया। और अब जुम्मन की नज़रों में अलगू उसकी सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था, और जुम्मन उस चीज़ का रिवेंज लेना चाहता था। रिवेंज मतलब स्टूडेंट्स बदला, वो बदला लेना चाहता था। बट अलगू चौधरी की तो कोई
कसूर ही नहीं था, राइट। उसका तो कोई फॉल्ट ही नहीं था क्योंकि उसने तो सच का साथ दिया। बट जुम्मन को ऐसा लगा कि वो उसका दोस्त है तो वो उसका सपोर्ट करेगा। बट ये तो अच्छी बात है कि अलगू चौधरी ने सच का साथ दिया। ही वॉज नॉट एट ऑल अगेंस्ट, ही वॉज इन अ फेयर प्लान, राइट स्टूडेंट्स। So students, part 2 is also now completed. So this is very interesting story, right students, and I hope that you are also enjoying this story. So later on, be patient, and later on in the next video we will discuss the rest part of this chapter, and then we can know that finally what was the end of this chapter, students, right? So be patient and wait for me in the next video. So till there, up to part 2 we will kept our video. In the next video we will start part 3, and then our chapter 7 would be completed, students. Okay, so till there, stay home and stay safe. With the help of this line, I would like to pack up. And if you have liked my video, so you should have to do 3 things, that is like, share and subscribe my channel, students. Okay, so bye bye and have a nice day, students.